Hi everyone, welcome to another video of LRDI most important sets, and in this particular video you are going to get one really challenging set of LRDI based on ranking concept. So similar sets have been asked previously in CAT exam, so there are very high chance that this kind of set will be asked again, so you must try for this set. Once again, as I mentioned, it's a challenging set. It is of LOD 3, so give sufficient time and try for the question that I provided, and then you can watch the solution that I provided in this video. Don't forget to hit the like button and do share it with all your friends. So let's look at the question, but before that, just a gentle reminder: today is the last day for this maximum discount that you are getting. So use my code CHAR10 and go for plus or iconic today itself if you want to maximize your learning, and make sure that all of you have joined this Telegram channel. So let's look at the set, guys. Here is the set on your screen. So it's about a particular competition, a particular academy where this Gopi Chand, who is the head coach at Indian Badminton Academy, makes his players work hard. In this process, he makes players compete for 100, 200 and 400 meter races on a monthly basis. Now this set has nothing to do with games and tournament. It's a simple set, you can say, based on ranking concept or arrangement concept. So the players are Ashwini, Dipti, Jwala, Rinku, Sneha and Smriti, and they participated in this race. So कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, तो जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि आप इसको यहाँ पे पॉज कर लो, इन्फॉर्मेशन रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, क्वेश्चन को ट्राई करो एंड देन प्ले द सोल्यूशन. So yes, here is the first question: what is the sum of the ranks of Ashwini? And you need to enter your answer over here because it's a Tita question. Then the second question: in how many races Rinku got a better rank than Smriti? So yeah, give a try. Then the third question and the fourth question. So there are six questions in this. Like in 2021, you had sets with six questions and four questions and so on and so forth. So this is on that pattern. Here is the fifth question. Once again, a data question and last question. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को ट्राई करना है और फिर आप ये सोल्यूशन को देखोगे. तो चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा. कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर से डालना कि क्या आंसर आपके आए हैं, ठीक है, और लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने सही हुए. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. So basically, it's about this three races, and each got distinct rank in any race. तो 100 मीटर रेस में रैंक हो गए 1 to 6, 200 मीटर रेस में भी रैंक हो गए 1 to 6, 400 मीटर रैंक में भी रैंक हो गए 1 to 6. अब अगर दीप्ति का सपोज 100 मीटर में सेकंड रैंक आया तो और किसी में दीप्ति का सेकंड रैंक नहीं हो सकता. तो ये भी हमें बताया इन ऑल थ्री रेसेस एग्जैक्टली. Yeah, so each person got distinct rank in each of her three races. The numerical sum of ranks of each player is also distinct. मतलब जो तीन रेस का एक पर्टिकुलर प्लेयर का रैंक का समेशन होगा वो दूसरे प्लेयर से अलग होना चाहिए. तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है. अब जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि टेबल बनाते हैं, बट टेबल में क्या हमें रैंक को फिक्स कर लेने चाहिए या प्लेयर को फिक्स कर लेने चाहिए. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके अंदर प्लेयर को फिक्स करते हैं, ठीक है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे रैंक को फिक्स करते हैं, बट आप एक बार ये भी ट्राई करना कि अगर हम प्लेयर को फिक्स कर दें और रैंक असाइन करें तो कौन सा बेटर होता है. मैं यहाँ पे कोई जजमेंट पास करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जो आसान है वही मेथड आपके लिए आसान हो. तो क्योंकि रैंक फिक्स करके प्लेयर को असाइन करना ज़्यादातर लोगों ने किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे अलग अप्रोच लेता हूँ. यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेयर को फिक्स कर दिया है और मैं उनके रैंक अलग अलग रेस में यहाँ पे लिखूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन में ये अप्रोच आसान हो जाता है, ठीक है. क्योंकि द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. अगर मेरे सामने रैंक ऐसे है 5, 4, 3, 1, 2, तो मैं यहाँ पे आसानी से फिगर आउट कर सकता हूँ 6. लेकिन अगर मेरे सामने ऐसे प्लेयर के नाम लिखे DASSR, तो मेरे लिए ये थोड़ा फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे जे आएगा, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम ऑर्डर में लेटर्स है. तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखो कि रैंक फिक्स कर लो और फिर प्लेयर्स फिक्स कर लो और फिर उसके रैंक को अलग अलग रेस में फिल करो, ठीक है. तो हम इसमें वो अप्रोच ले रहे हैं. चलो, सो कहाँ से शुरू करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आप सब लोग जानते हो, मैं हर बार बताता हूँ. सो यहाँ पे जो ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है, जैसे पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना. दीप्तिज रैंक इन 200 मीटर रेस इज सेकंड. तो दीप्ति का 200 मीटर रेस में सेकंड रैंक है, तो वो लिख दिया. स्नेहा डिड नॉट फिनिश सेकंड इन एनी रेस. तो स्नेहा का कोई भी रेस में सेकंड रैंक नहीं है, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे
कि स्नेहा में 2 रैंक नहीं आ सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 6 सम ऑफ रैंक्स इन 3 रेसेस फॉर रिंकू एंड स्मृति आर 13 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो रिंकू एंड स्मृति के लिए रैंक का समेशन क्या है, 13 एंड 12। ठीक है, तो रिंकू के लिए रैंक का समेशन 13 है, स्मृति के लिए 12 है। अब दोस्तों एक बात देख लेते हैं कि 13 कैसे आ सकता है। तो 6 प्लस 5 प्लस 2 करेंगे तो भी 13 आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप 6 प्लस 4 प्लस 3 भी करोगे तो भी 13 आ सकता है, मतलब 6 तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप 5 प्लस 4 प्लस 3 करके 13 नहीं ला सकते। सिमिलरली हम देख लेते हैं 12 कैसे आएगा। तो 12 लाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 6 प्लस 5 प्लस 1 कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट या फिर 6 प्लस 4 प्लस 2 भी कर सकता हूँ, या फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 भी कर सकता हूँ। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया रिंकू और स्मृति के लिए रैंक्स। ठीक है, ओके। एक और चीज लिखी है, स्मृति डिडंट फिनिश अमंग द लास्ट टू इन द 400 मीटर रेस, द सेम इज ट्रू फॉर रिंकू। तो स्मृति लास्ट टू में नहीं है, मतलब 5th और 6th रैंक नहीं है। किसका, स्मृति का। किसमें, 400 600 मीटर रेस में। तो यहाँ पे 5 और 6 नहीं आएगा। द सेम इज ट्रू फॉर रिंकू, तो रिंकू में भी 5 6 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ रैंक इज हायर फॉर स्नेहा एज कंपेयर टू दीप्ति। तो स्नेहा का रैंक दीप्ति से ज्यादा है, स्नेहा के रैंक का टोटल दीप्ति से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 6 प्लस 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन सम अदर टोटल, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है ना, ये पॉइंट एक इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। लेट्स यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा है, द ओनली पर्सन हु रीच्ड अर्लियर देन बोथ ज्वाला एंड स्नेहा इन 100 मीटर रेस is the only person who reached after this two in 200 meter race. Okay, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई एक पर्सन है जो जो ज्वाला और स्नेहा दोनों से, द ओनली पर्सन हु रीच अर्लियर देन बोथ ज्वाला एंड स्नेहा इन 100 मीटर रेस। ठीक है, तो दोस्तों कोई एक पर्सन है जो, एक लौता ऐसा पर्सन है जो ज्वाला और स्नेहा दोनों से पहले पहुंच गया था। तो वो पर्सन कौन सा होना चाहिए, कहने से रैंक 1 पर्सन होना चाहिए। तो डेफिनेटली 100 मीटर रेस में ज्वाला और स्नेहा में से, ज्वाला एंड स्नेहा, राइट, 100 मीटर रेस में ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक का तो डेफिनेटली सेकंड रैंक होना ही चाहिए। क्या आप ये अग्री करते हो, किसी एक का सेकंड रैंक तो होना ही चाहिए। अब स्नेहा का तो सेकंड रैंक हो नहीं सकता, तो हमें पता चल गया कि ज्वाला का 100 मीटर रैंक में सेकंड रैंक होगा। एंड सिमिलरली दैट पर्सन वाज द सेम पर्सन हु रीच्ड आफ्टर दिस टू इन 200 मीटर रेस। ठीक है, तो वो पर्सन का ये रेस में फर्स्ट रैंक होगा और 200 मीटर रेस में उसका 6th रैंक होगा। बट 6th 200 मीटर रेस में ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक का तो 5th रैंक होना ही चाहिए। ठीक है, तभी उसके बाद में ये पर्सन पहुंचा है। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। देखो, the only person who finished earlier than Jwala and Sneha, suppose that person is P, was the only person 100 meter race में, was the only person who finished after Jwala and Sneha in 200 meter race. ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि सपोज ज्वाला का 3rd रैंक है, स्नेहा का 5th रैंक है, और ये पर्सन का अगर मैं 2nd रैंक लेता हूं तो देयर विल बी अनदर पर्सन हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो 2 पर्सन हो गए, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक सिनारियो लेता हूं जिसमें सपोज ये पर्सन का 1st रैंक है, ज्वाला का 2nd रैंक है, स्नेहा का भले 4th रैंक ले लो, अल्टीमेटली ये दोनों से पहले किसने फिनिश किया, एक ही पर्सन है। तो इससे हमें पता चला ज्वाला और स्नेहा में से किसी का 2nd रैंक होना चाहिए। हमें पता है स्नेहा का 2nd रैंक हो नहीं सकता, तो ज्वाला का ही होगा। सिमिलरली 200 मीटर रेस में ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक का 5th रैंक होना चाहिए। सपोज इसका 3rd है, इसका 5th है, या इसका 2nd है, इसका 5th है, ऐसा कुछ ले लो। पर 2nd तो ऑलरेडी हो गया, 4th एंड 5th ले लो। तो ये पर्सन का 6 ले लेता हूं, तो कहने से दिस इज द ओनली पर्सन हु फिनिश्ड आफ्टर बोथ ऑफ दिस। ठीक है, मतलब बीच में अगर कोई आ भी गया, सपोज आपने यहाँ पे 1st रैंक ले लिया, बीच में कोई और भी लोग आ गए, लेकिन ये दोनों के बाद में किसने फिनिश किया है, तो एक ही पर्सन है। तो दिस इज व्हाट इट सेज। तो इसलिए मुझे पता चला कि 200 मीटर रेस में ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक का क्या रैंक होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। बट वो किसका 5 है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये पर्सन कौन हो सकता है, तो देख के ही पता चल जाएगा। ये पर्सन जो है ना, क्योंकि
ये पर्सन जो भी है उसने एक रेस में फर्स्ट पे फिनिश किया, एक पे सिक्स पे किया है। तो रिंकू ने तो कोई भी रेस में, रिंकू स्मृति ने कोई भी रेस में सिक्स पे किया नहीं है। ज्वाला स्नेहा हो नहीं सकते। 200 मीटर रेस में दीप्ति का सेकंड रैंक हो गया, तो कैन आई से दैट पर्सन हैज टू बी अश्विनी। तो अश्विनी का 100 मीटर रेस में फर्स्ट रैंक हो जाएगा एंड अश्विनी का 200 मीटर रेस में सिक्स्थ रैंक हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें ये पता चला। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये चैलेंजिंग सेट है, तो इसमें जो स्टेटमेंट है उसको इंटरप्रेट करना भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है ये पॉइंट। ठीक है, तो हमें इस तरीके से धीरे धीरे इसको करना है। ठीक है, राइट, ओके। अब रिंकू और स्मृति के क्या रैंक हो सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि रिंकू का टोटल 13 है, राइट। लेट मी यूज ब्लू कलर वंस अगेन। हाँ, सो रिंकू का टोटल 13 है एंड स्मृति का टोटल 12 है। क्या रिंकू में 652 हो सकता है? ठीक है, क्योंकि 6 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो 6 और 5 यहाँ पे कहीं पे मैं ले सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है। 652 पॉसिबल है। ओके, 643 हो सकता है। लेट्स सी। अच्छा, 6 यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 6 आ चुका है, 5 आ चुका है। तो कहने से 6 और 5 यहाँ पे भी नहीं आएगा, 6 और 5 यहाँ पे भी नहीं आएगा। देखो, रिंकू के लिए 6 और 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। ये वर्टिकली अगर आप देखोगे तो 6 और 5 किसी का आ चुका है, 6 तो ऑलरेडी अश्विनी का है एंड ज्वाला और स्नेहा का 5 है, तो 6 5 यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 5 अकोमोडेटी नहीं हो सकता, है ना। तो 6 5 वाली पॉसिबिलिटी तो चली गई। तो डेफिनेटली क्या पॉसिबिलिटी बचेगी? 643। अब 6 मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं आ सकता, 6 यहाँ पे 200 मीटर रेस में आ चुका है, तो मैं 6 कहाँ पे रख दूंगा? 6 को यहाँ पे रख दूंगा। 4 3 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ये इसके लिए देखता हूँ, स्नेहा के लिए 651। ठीक है, अब अगर आप देखोगे 6 यहाँ पे आ नहीं सकता, 6 यहाँ पे नहीं आ सकता, 6 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 6 वाली पॉसिबिलिटी चली गई क्योंकि 100 मीटर रेस में ऑलरेडी 6 किसी का आ चुका है, 200 मीटर रेस में 6 किसी का आ चुका है और स्मृति का 5 6 रैंक 400 मीटर में नहीं है, तो 6 वाले पॉसिबिलिटी चले गए। तो स्मृति के रैंक क्या हो जाएंगे? 543। अब यहाँ पे 5 आ चुका है 200 मीटर रेस में और 400 में उसका 5 हो नहीं सकता, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 3 3 4 में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया। ठीक है ना, राइट। ये किसकी बात थी? स्मृति की। रिंकू एंड स्मृति का हमें दिया हुआ था, राइट। रिंकू एंड स्मृति। ओके, तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब आगे कैसे बढ़ेंगे? ये वाला पार्ट तो हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिसके हमें टोटल पता है वो टोटल भी लिख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके टोटल अलग होने चाहिए। और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारी पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। तो सबसे पहले तो रिंकू का हमें पता है 13 है। स्मृति को मैंने एम से इंडिकेट किया है, SM। तो उसका हमें पता है 12 है। और किसी का हमें पता चला नहीं, पता चल रहा है, सिर्फ इतने का पता है। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। देखो, इन ऑल 3 रेसेस एग्जैक्टली वन ऑफ ज्वाला एंड स्नेहा फिनिश्ड बिफोर दीप्ति। मतलब हर एक रेस में ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक ने बिफोर दीप्ति फिनिश किया, किसी एक ने आफ्टर दीप्ति फिनिश किया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 मीटर में मेरे पास रैंक कौन से बचे? तो 1 2 6 5 हो गया, 3 4 बचा है। तो 3 4 में से कोई एक यहाँ पे आएगा और 3 4 में से कोई एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा है ज्वाला और स्नेहा से ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक ने दीप्ति से पहले किया हुआ होना चाहिए। ज्वाला का रैंक 2 है। ठीक है, ज्वाला का रैंक 2 है और स्नेहा का 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दीप्ति का 4 लेता हूं तो ज्वाला एंड स्नेहा, स्नेहा का 3 हो जाएगा। तो ज्वाला एंड स्नेहा दोनों दीप्ति से पहले फिनिश कर लेंगे। तो इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे दीप्ति को 3 असाइन कर दो, ज्वाला स्नेहा को 4 असाइन कर दो। ज्वाला का तो ऑलरेडी 2 है। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? ज्वाला, फिर दीप्ति, फिर स्नेहा, 2 3 4। तो कहना इसे एग्जैक्टली ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक ने दीप्ति से पहले फिनिश किया है। तो ये 100 मीटर रेस का हो गया। वही लॉजिक से हमें 200 मीटर रेस में भी कुछ क्लू मिल सकता है। लेट्स ट्राई। 200 मीटर रेस में दीप्ति का सेकंड रैंक है, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक का फर्स्ट रैंक होना ही चाहिए।
और किसी एक का 5th रैंक होगा, बट किसका होगा नहीं पता चलेगा, बट 5115 दोनों में से किसी एक का होगा। तो अब इसको छोड़ देते हैं, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, स्नेहा का यहाँ पे रैंक क्या हो सकता है, क्या ये हम बता सकते हैं स्नेहा का? या लेट्स सी। ओके, हाँ, अश्विनी का यहाँ पे क्या रैंक आएगा वो देखते हैं। तो अश्विनी का 1-6 हो चुका है, 5 हो नहीं सकता, 3-4 यहाँ पे आ चुका है, तो बचा कौन सा, सिर्फ 2 बचा। तो कहने से यहाँ पे डेफिनेटली अश्विनी का 2 रैंक आएगा। क्यों 2 रैंक आएगा, क्योंकि 3-4 हमें पता है रिंकू एंड स्मृति का हो जाएगा, ठीक है, 1-6 हो नहीं सकता। ओके, 5 भी आ सकता है, ओके, यहाँ पे अश्विनी का 5 भी आ सकता है, बट अगर मैंने यहाँ पे अश्विनी का 5 ले लिया तो 1+6 7+5 12 हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी स्मृति का टोटल 12 है, तो इसलिए 5 नहीं आ सकता। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर है। अभी हमारे पास रैंक कौन से बचे, 2 हो गया, 3-4 हो गया, तो 1-5-6 ये रैंक्स बचे हैं, ठीक है ना। हाँ, 1-5-6। अब फिर से वही कंडीशन के दीप्ति का रैंक ज्वाला और स्नेहा में से किसी एक से आगे होना चाहिए और एक से पीछे होना चाहिए। तो बचा है 1-5-6। तो कहने से बीच का वैल्यू क्या आता है 5, तो दीप्ति को हमें 5 ही असाइन करना पड़ेगा। मैं फिर से अलग कलर यूज करता हूँ, तो दीप्ति का यहाँ पे 5 होगा, और 1 और 6 में से कोई एक ज्वाला का होगा, और 1 और 6 में से कोई एक स्नेहा का होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया। तो अब तक हमें अश्विनी का भी रैंक का टोटल पता चल गया, 9 हो गया है। दीप्ति का भी रैंक का टोटल पता चल गया 10, और स्नेहा का हमारा 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, स्नेहा का हमारा टोटल 10 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं 4-5-1 तो ले नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं स्नेहा का 4-5 और 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4-1-6 ही लेना पड़ेगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे सबके टोटल अलग हो जाएंगे। ज्वाला का टोटल क्या हो गया, 2+5 7+1 8। रिंकू का टोटल कितना हो गया, 6+4 3 में से कोई एक यहाँ पे, कोई एक यहाँ पे, तो अल्टीमेटली रिंकू का तो 13 हमने लिख दिया है। स्नेहा का टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 4+1 5+6 11। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या आएगा, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा पूरा टेबल बन रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन के क्या सारे आंसर मिल जा रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ अश्विनी। सो अश्विनी की रैंक का समेशन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी रेसेस रिंकू गॉट अ बेटर रैंक देन स्मृति। तो कितने रैंक में रिंकू का स्मृति से बेटर रैंक है, मतलब 5 इज बेटर देन 6, बट यहाँ पे तो रिंकू का पीछे रैंक है। कैन आई से डेफिनेटली 200 एंड 400 में से कोई एक रेस में रिंकू का स्मृति से आगे होगा रैंक, और कोई एक में पीछे होगा। तो देर विल बी एग्जैक्टली 1 रेस जिसमें रिंकू का रैंक स्मृति से आगे होगा। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आएगा। भले ही हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो दिस वाज अ ट्रिकी वन। हु गॉट द 5th रैंक इन 400 मीटर रेस। तो 5th रैंक किसका है 400 मीटर रेस में, दीप्ति का है। तो यहाँ पे हम दीप्ति टिक कर सकते हैं। Then for which player is the sum of rank the lowest? Sum of rank, numerical sum of rank lowest. तो कैन वी से ज्वाला के लिए सम ऑफ रैंक लोएस्ट आएगा। क्यों, 8 वैल्यू आ रहा है ज्वाला के लिए, तो ये सम ऑफ रैंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते थे, न्यूमेरिकल सम ऑफ रैंक, न्यूमेरिकल सम ऑफ रैंक, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का। बाकी 1 रैंक इज बेटर देन 6 रैंक एक्चुअली। Now what is the ज्वाला's rank in 400 मीटर रेस। तो ज्वाला का 400 मीटर रेस में हमारा क्या रैंक था, सो फर्स्ट रैंक था। तो यहाँ पे 1 इंसर्ट करना है। अब देखो दोस्तों, अगर सपोज ये सेट आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाए, बट इसके टीटा क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने चाहिए। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रेंडमली एंटर करके आ जाओ। अगर थोड़ा सा रीड कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि यार 400 मीटर रेस में इसका 5-6 रैंक नहीं है, तो 1-4 में से एक आंसर डालना है तो एक डाल, ठीक है। मतलब कोई एक आंसर डाल दो, भले गलत हो जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग स्कोर।
एंड सिमिलरली हु इज द व्हाट इज स्नेहाज रैंक इन 200 मीटर रेस? तो स्नेहा का 200 मीटर रेस में क्या रैंक था? स्नेहा का फर्स्ट रैंक था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। ज़रूर से सबके साथ में शेयर करना अपने ग्रुप्स में, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने सही हुए और कैसा लगा आपको ये सेट, ताकि मैं और ऐसे सेट लेके आया करूँ। दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर ऑफ माय वीडियोस। और जैसा मैंने बताया, मैं ज्योमेट्री की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री सीरीज रहेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले। एंड अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो ये कोड को यूज़ करना मत भूलना। Stay tuned for more of my videos. Till then, bye bye and take care.